Friends, Pratibha College of Commerce and Computer Study organizes a course on embedded system. So, in that we are going to study the Arduino board. So today we are here to study the Arduino board. So, I, Professor Gitanjali Dore, will introduce you in today's session the Arduino board. So for that, I am sharing my screen. So firstly, we'll study the Arduino board. So first, what is Arduino board? We'll see that. So Arduino board is nothing but your other microcontrollers. Means it is same as your other microcontroller boards. It this board performs so many operations like LED on off, then stepper motor controller, then simple oscilloscope. Means it can perform various numbers of operations. So firstly, uh, this is a combination of your software as well as your hardware. So this is what about the Arduino board. In this picture, you will see the Arduino Uno board. So there are a number of types of this board. So we'll see that board one by one. So first one is Arduino Uno board. So this is the diagram of Arduino Uno board. You can see the board. Then for that we are using the Atmega 328 controller IC. Again, there are a number of input pins and output pins. In that, analog pins are there, then digital pins are there, then one power cable is there, that is a power jack, then one USB connector is there, and this is a basic of your Arduino board. So today we use this board, and by using this board I am going to show you how to connect this board to your sensor and how it performs the operation with the sensor. So next type of your Arduino board is a LilyPad Arduino. Again, this board have so many patches uh, for connecting purpose. Then this board is developed by Lich and cooperatively designed by SparkFun. Then it is creatively designed with a large connecting pads and a flat back. Means this there are so many connecting pads, and as you changes your board, means as you changes your type of your Arduino board, according to that the connections are also different. Okay, so this board, again this board also have the input and output, then one power supply is there, then again sensors are available on these boards. Okay, then next type of our board is a breadboard. Again there is a difference between the Arduino Uno board and the this breadboard. So this breadboard can be programmed over a USB mini B cable. Means we can program this board by using the USB mini B cable. Means and for that we use the Arduino IDE software. Then it is more stable due to the USB chip which is used in this board. Then again there is one power jack, then input pins and output pins.
then it needs or it can handle up to a 7 to 15 volt DC. Then we'll move towards the next type of the board, that is Arduino Leonardo. So this is what the Arduino Leonardo board. The Leonardo is a Arduino first development board. Means जैसे पहले Arduino बोर्ड बना था तो सबसे पहले ये बोर्ड डेवलप हुआ था for using a microcontroller. Then this means that it can cheaper, सबसे cheaper ये बोर्ड था. Then also because the board is handling a USB directly, means we can connect the USB cable directly to this board. So it is a very simplest form of our Arduino board, which is available easily. Then again, which allows us a board to emulate a computer keyboard, then mouse, and so many options. Again, there is one power cable, means power supply, power adapter cable is there. Then input pins and output pins, means जैसे ही आपका टाइप चेंज करते हो, means according to your application purpose, you can change the selection of the board. So सबसे पहले ये बना था, so but obvious है कि specifications थोड़े से कम ही होंगे इसमें. So most probably we used a Arduino Uno board for the simple project. Then there are again lots of extended family is also there. There are lots of extended family, means lots of different types of your board is there, like your Arduino shielded boards. Then the most handy boards are there which can be used. Then today we as we used Arduino Uno board, so we should know about the board, means exactly उस बोर्ड के ऊपर क्या क्या है, देन कौन से पिन्स कहाँ पे कनेक्ट करने हैं, विच आर दी इनपुट पिन्स, विच आर दी आउटपुट पिन्स, वो हमें देखना है, राइट. सो वन बाय वन यहाँ पे मैंने नंबरिंग की है, सो दैट यू शुड नो दी which number is showing the which connections. So first number is there where we can connect our programmable USB cable, means जहाँ से हम प्रोग्राम करने वाले हैं, means यहाँ पे जो हमने IC यूज की है that is Atmega 328, which is what our programmable IC. So उस IC में हम क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम करने वाले हैं. लेकिन उस IC को प्रोग्रामिंग करेंगे कहाँ से? सो फॉर दैट हमें एक USB जैक लगेगा, right? So for that there the one number is there, means that plug is there for connecting purpose of our USB cable, USB jack. Then again second number is given for your power supply. जो यहाँ पे मैंने सेकेंड नंबर दिया है वो वहाँ पे हम सप्लाई कनेक्ट करने वाले हैं, मीन्स आवर पावर सप्लाई हमारा कौन सा भी सर्किट हो तो उसमें क्या जरूरी है, पावर सप्लाई जरूरी है. सो आर्डिनो बोर्ड को सप्लाई देना है, सो फ्रॉम दैट पॉइंट वी आर गिविंग द सप्लाई टू दिस बोर्ड. देन नेक्स्ट वन इज 6 number. 6 number is our analog input pins, means from A0, A1, A2, A3, A4 and A5. These 6 pins are analog input pins, means all these are the analog pins. So there are 6 analog input pins. Then again next one, third number is ground pins, means we can give the ground connections from
from here. Then two power supply is there, that is a 3.3 volt and 5 volt, means 4 number is 5 volt supply, and then next one is our 3.3 volt supply. Then again we'll move towards the next one, that is 11 number point. That 11 number point is a LED, which is a power LED. जैसे ही हम इसे USB कनेक्ट करते हैं फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस, वो LED क्या हो जाती है, ऑन हो जाती है। और वो क्या करें, जैसे ही हम सॉफ्टवेयर थ्रू प्रोग्रामिंग बर्न करना स्टार्ट करेंगे, वैसे ही वो LED ब्लिंक करना क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली 11 नंबर मींस पावर LED. So the main purpose of this LED is showing that the programming is going to be started, और जैसे ही प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। Means this is the this LED is used for the indication of the programming. Then next one, there are digital input pins from pin number 2 to pin number 30. Pin number 1 is your TX, that is transmission pin, and then next one is RX pin, that is what your receiver pin, and all remaining pins are the digital pins. Means if we want to connect the digital output, then we have to connect that pins on these pin numbers. So 7 to 8 means 7 and 8 जहाँ पे मैंने नंबरिंग किया है, that is what your digital pins. Okay, the next one is 10 number, that is what your reset button. There is a switch which is used for the reset purpose. जैसे ही मतलब अभी उस बटन का और उस स्विच का एग्जैक्टली यूज क्या है, अभी जैसे ही मैंने पहले एक प्रोग्राम बर्न किया है ICB, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, जब भी वो पूरा प्रोग्राम मुझे रीसेट मतलब स्टार्ट टू एंड वो मुझे पहले से ही स्टार्टिंग में रन करना है, मतलब बीच में आ गया लेकिन अभी मुझे वो स्टार्टिंग से चाहिए, तो वो रीसेट बटन मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। या फिर जैसे ही मैंने प्रोग्राम अपलोड किया है तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे रीसेट करना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग दिस स्विच। सो दैट्स ऑल ऑन द बोर्ड। मीन्स दिस इज व्हाट एग्जैक्टली Arduino Uno board. Then one more number is remaining, that is 12 number. That 12 number is nothing but your TX and RX. That TX is a transmission LED and RX is a receiver LED. So what is that exactly? That two LEDs are for use just जैसे कि आपका अगर प्रोग्रामिंग हो रहा है मतलब वो क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा डेटा, so that is what your receiver purpose. So दिस समय आपका क्या होगा, रिसीवर जो LED है वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। और नेक्स्ट वन, इफ you are giving the data means some kind of data to this output like your LED और जैसे कि आपका buzzer है, अगर आप उसे output दे रहे हो, so that is what exactly you are transmitting your data, means you are transmitting the instruction or any kind of data towards the output, means toward the output device. अगर जैसे ही आपको आउटपुट डिवाइस को डेटा ट्रांसमिट करते हैं तो दैट इज व्हाट योर ट्रांसमीटर, राइट। सो जब हम ये डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं आउटपुट को, तब क्या हो जाएगा आपका, ये जो TX LED है वो क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ओके, सो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दी बोर्ड। सो क्या क्या है इस बोर्ड पे, फर्स्ट वन इज USB केबल है, USB केबल का कनेक्टर है जो हम यूज करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कंट्रोलर को। अभी ये क्या है,
आर्डिनो यूनो एक इटालियन कंपनी है जो कि ये पूरा स्ट्रक्चर बनाती है। ओके हम ये डिफरेंट कंपोनेंट्स कंबाइन करके वन सर्किट भी बना सकते हैं, लेकिन विच इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, सो वी परचेज द आर्डिनो बोर्ड लाइक दिस वन ओनली। ओके सो क्या क्या देखा हमने इस बोर्ड के ऊपर? यूएसबी जैक एक है, देन नेक्स्ट वन इज पावर कनेक्टर एक है, देन एक कंट्रोलर की आईसी है दैट इज Atmega 328, then there are two power supplies that is 3.3 volt and 5 volt, then there is a analog pins are there A0 to A5, then next one is one power LED is there, then there are a digital pins also that is from 1 number to 13 number, all these are the digital pins. Then next one is what your reset button. So this is what exactly your Arduino Uno board. Okay, so we'll move towards the next topic, that is what now how to program this board. This is the power connectors. फर्स्ट वन इज योर पावर सप्लाई, जो कि मैंने एडाप्टर यहाँ पे एडाप्टर की इमेज है. देन सेकेंड वन इज योर यूएसबी केबल, जो 1 नंबर है, दैट इज व्हाट योर यूएसबी जैक. वहाँ पे हम ये सेकेंड वाली जो वायर है वो कनेक्ट करेंगे. देन जो सेकेंड नंबर है इस बोर्ड में वो क्या है, आपका पावर केबल है. सो वो पावर कनेक्टर को हम ये जो एडाप्टर है फर्स्ट नंबर इमेज वो कनेक्ट करेंगे. ओके, सो दिस इज व्हाट योर पावर सप्लाई. नाउ हाउ टू प्रोग्राम दी आर्डिनो बोर्ड. तो यहाँ पे मैंने एक इमेज भी मतलब यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है. हम वन बाय वन देखेंगे कि एग्जैक्टली हम इसमें प्रोग्राम कैसे करने वाले हैं. ओके, सो फॉर दैट we need Arduino IDE software, means we have to install that software in the your device. It may be a laptop or computer, means आपको आपके डिवाइस में क्या करना पड़ेगा, Arduino का जो सॉफ्टवेयर है IDE है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा. देन इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसी स्क्रीन देखेगी जैसे अभी दिखाई दे रही है स्क्रीनशॉट में, वैसी इमेज आपको दिखाई देगी. अभी उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन है, तो मैंने यहाँ पे 1.8.1 यूज किया है. ओके, अगेन वंस द मीन्स जैसे ही आपका सर्किट ब्रेडबोर्ड के ऊपर कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर दैट we need to program our IC. Okay, so for that different types of instructions are used in this software. उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करके हमें क्या करनी है, प्रोग्रामिंग यूज करनी है. सॉरी. ओके, सो वो उसमें क्या क्या है देखो. पहले जो टिक मार्क है वो दिस इज व्हाट यू आर अपलोडिंग द प्रोग्राम. अभी इसमें क्या क्या है वो हम जैसे ही मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या प्रोग्रामिंग कैसे करना है उसमें आपको पता चल जाएगा. ओके, सो लाइक योर अदर प्रोग्रामिंग, इसमें भी दो इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉमन है, दैट इज व्हाट योर void setup and second one is void loop. So void setup is used to set your code, and second one, that is a void loop, which is the loop which continuously runs repeatedly. Okay, void setup is used to set your code, and void loop is used to run your code continuously in the loop or continuously in the process. So that is what your void setup and void loop. Now in today's session I'm going to show you the how to connect your Arduino board with the sensors. मीन्स आपको क्या करना है, अभी सेंसर आपके बोर्ड को कनेक्ट करना है. ठीक है, आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट भी इसे दे सकते हैं.
बट हम यहाँ पे सेंसर का इनपुट क्या करेंगे, सेंसर का इनपुट आर्डिनो बोर्ड को कनेक्ट करेंगे एंड जो आउटपुट है वो हम आउटपुट डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे। सो एग्जैक्टली वो कैसे रन करेगा वो हम देखेंगे, बट यहाँ पे मैंने अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको सेंसर्स दिए हैं। सो वी कैन कनेक्ट different types of sensor to the board. So just like your PIR sensor, then your temperature sensor, LM35 you can connect it, then ultrasonic sensor is also there. Okay, जैसे you can connect your any kind of input or any kind of a sensor to this board. So यहाँ पे मैंने just examples दिए हैं कि आप कौन से sensors यहाँ पे use कर सकते हैं। लाइक योर लाइट सेंसर उसमें आ सकता है, टेम्परेचर सेंसर हो सकता है, देन प्रेशर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर, यू कैन यूज एनी काइंड ऑफ सेंसर। ओके, सो हम आज जो आपका PIR सेंसर है वो क्या करेंगे, उसे यूज वो कनेक्ट करेंगे। ठीक है, सो पहले हम उस सेंसर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसकी सर्किट डायग्राम देखेंगे। सो दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ योर PIR सेंसर। अभी पहले ये देखेंगे कि PIR सेंसर के कौन से पिन्स होती है। ओके, सो देयर आर अ थ्री पिन्स फॉर द PIR सेंसर। फर्स्ट पिन इज योर, नाउ इसमें जो देखो मैंने रेड कलर से जो कनेक्ट किए हैं दैट इज व्हाट योर सप्लाई, पावर सप्लाई पिन मीन सप्लाई वोल्टेज देना है सेंसर को। सो दिस इज व्हाट योर VIN पिन जो रेड कलर से मैंने कनेक्ट किए हैं बोर्ड के ऊपर। अभी देखो आपके बोर्ड के ऊपर मैंने बताया था कि जैसे कि दो पावर सप्लाई है, दो इनपुट वोल्टेज है, सॉरी आउटपुट वोल्टेज है, दैट इज व्हाट योर 3.3 एंड 5 वोल्ट। सो यहाँ पे मैंने मेरे सेंसर्स को कितना वोल्टेज चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए। सो मैंने यहाँ आईसी की जो सॉरी PIR सेंसर की जो पिन है, इनपुट सप्लाई की जो पिन है वो किसे कनेक्ट किए है, 5 वोल्ट को क्या किए हैं मैंने कनेक्ट किए। Then next one is what, middle one is my output. Middle one is what, my output pins which is a yellow color. Okay, so वो मैंने कहाँ पे कनेक्ट किए हैं, अभी PIR सेंसर के जो वो सेंस करेगा वो इनपुट हमें क्या करना है, आईसी को देना है, राइट। सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दी एनालॉग पिन, राइट ना। मतलब जैसे ही वो सेंस करेगा इंफ्रारेड जो भी लाइट है वो जो सेंस करेगा वो कहाँ पे देना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट योर एनालॉग फॉर्म इनपुट, राइट। सो आई एम गोइंग टू कनेक्ट दिस इनपुट टू द एनालॉग पिन। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पे 6 इनपुट पिन्स है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, कहाँ पे किया है, उसे A2 पे कनेक्ट किया है। यू कैन यूज एनी पिन फ्रॉम दैट वन, मतलब आप कौन से भी पिन उसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। सो मैंने एक पिन को क्या किया है, यहाँ पे कनेक्ट किया है। देन नेक्स्ट वन इज व्हाट, नाउ नेक्स्ट वन इज converting that analog input to the digital format। अभी उसका जो इनपुट है वो एनालॉग है, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, आउटपुट दिखाना है, राइट। सो आउटपुट के लिए मैंने यहाँ पे एक LED भी कनेक्ट किए हैं और सेकेंड वन बजर भी कनेक्ट किया है। ओके, मीन्स आउटपुट जो है मेरा वो किस में दिखाई देगा, either it will glow the LED or second one it will beep the buzzer। ओके, अभी इसका एग्जैक्टली वर्किंग कैसे होगा, फिर ये तो मेरे सारे क्या हो गए, कनेक्शंस हो गए, राइट। बट एग्जैक्टली हाउ इट विल वर्क, तो उसके लिए क्या होगा, पहले PIR सेंसर क्या करेगा, नाउ इन दिस डायग्राम और इन दिस board, what is my input,
इनपुट इज व्हाट माय PIR सेंसर, जो कि मेरा क्या करेगा, इनपुट सेंस करेगा. एंड व्हाट इज माय आउटपुट, आउटपुट इज व्हाट, बजर एंड LED. राइट. सो अभी इनपुट अगर PIR सेंसर है तो इनपुट मतलब क्या करेगा, वो सेंस करेगा. राइट. जैसे ही वो उसके बीच में कोई भी पर्सन आता है या फिर कोई भी ऑब्स्टेकल जनरेट हो जाता है, ऑब्स्टेकल आ जाता है, सो वो क्या करेगा, सेंस करेगा. एंड जैसे ही वो सेंस करेगा वो क्या करेगा, एक पल्स जनरेट करेगा. राइट. एंड वही पल्स वो किसको दे रहा है, एनालॉग इनपुट को. मतलब हमारा जो आर्डिनो यूनो का बोर्ड है, उस बोर्ड को एनालॉग पिन को वो क्या करेगा, इनपुट देगा. राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, अभी उसे क्या मिल गया, आर्डिनो बोर्ड जो है उसे क्या मिल रहा है, अभी इनपुट मिल रहा है. राइट. जैसे ही उसे इनपुट मिल जाता है उसके बाद उसका क्या काम, क्या है, अभी उसे बस चेक करना है. इनपुट आ गया है तो प्रोग्रामिंग में हमें ऐसे सेट करना है कि जैसे ही उसे इनपुट मिलता है उसे क्या करना है, आउटपुट में LED ऑन करनी है एंड सेकेंड वन बजर को बिप करना है. ओके. अभी उसके बीच में मतलब ऑब्स्टेकल आ गया तो वो पल्स जनरेट करेगा एंड देन आफ्टर इट विल गो टुवर्ड्स आवर बोर्ड एंड देन आउटपुट को जनरेट, आउटपुट जो है हमारा वो क्या होगा, ऑन हो जाएगा. मतलब आउटपुट जो है LED ऑन हो जाएगी या फिर बजर क्या करेगा, बिप करेगा. ओके. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दी that is what exactly the board and the connections of our sensor and output buzzers. Okay. अभी ये हो गया हार्डवेयर पार्ट. that this is what my hardware. राइट ना. ये सारा क्या हो गया मेरे, ये सारे क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए जो कि मैंने कनेक्ट किया है. राइट. बट अभी ये जो मेन काम है कि जो उसे कन्वर्ट करना है, मीन्स इनपुट को आउटपुट में उसे कन्वर्ट करना है. राइट. सो दैट इज नथिंग बट दी सॉफ्टवेयर पार्ट. राइट ना, कि जो मुझे किसमें करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर में. आर्डिनो का जो मैंने अभी पहले आपको स्क्रीन दिखाई थी उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे कोडिंग करनी पड़ेगी. राइट. सो वो कोडिंग कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पे मैंने एक वीडियो दिया है. सो आप उसे देख के कर सकते हो. जस्ट होल्ड फॉर 1 minute. सो सी, यहाँ पे आपको आर्डिनो का सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर है जो कि ऐसा दिखेगा, आपको वो ऑन करना है फॉर द प्रोग्रामिंग पर्पस। उसे अभी ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वेट। जैसे ही आप उसे ओपन करोगे आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी कि जिसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया था वैसे ही स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसमें दो ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज void setup and second one is what your void loop. So now you have to write your code in this, यहाँ पे लिखा है ना put your code और put your setup code here। यहाँ पे आपको सेटअप का जो कोड है वो यहाँ पे पुट करना है एंड लूप कोड आपको यहाँ पे राइट करना है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन, जैसे ही आप कोड लिख लेते हो, जैसे कोड राइट करके कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। जो फर्स्ट एरो है यहाँ पे दैट इज व्हाट यू आर वेरीफाइंग। देन जैसे ही वो कोड वेरीफाई हो जाएगा आपको क्या करना है, उसे अपलोड करना है। एंड सेकेंड एरो इज फॉर अपलोडिंग पर्पस। तो उस एरो पे जैसे आप क्लिक करोगे वो क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट योर आउटपुट विल बी शोन। ओके, सो अभी ये आउटपुट आपके सेंसर के ऊपर कैसे दिखेगा वो मैं आपको शेयर करती हूँ, दिखाओ के अभी। दिस इज व्हाट यूर, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो पोर्ट है वो उसी के ऊपर है क्या। नेक्स्ट वन यू हैव टू राइट दी कोड। यहाँ पे मैंने जैसे कि सिंपल एलईडी का एलईडी ऑन ऑफ का कोड लिखा है। सो देखो जैसे ही आप उसे कंपाइल करोगे तो वो डन करेगा, मतलब जैसे ही आप उस एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका कंपाइलिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड देन यू हैव टू अपलोड इट। जो सेकेंड एरो है उसके ऊपर आपको कनेक्ट करके क्या करना है, आपको अपलोड करना है। सो आफ्टर अपलोडिंग देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको, देखो अपलोडिंग होने के बाद ये जो आपकी एलईडी है वो ऑन हो जाएगी, जो कि मैंने बताई थी। कंटिन्यूसली अपलोडिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। So this is what exactly the Arduino board and the sensor, जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं उसे। So that's all for this session. Thank you everyone.